So now let us start with the strategy. First of all, let us understand the concept of strategy is. ये जो वर्ड स्ट्रैटेजी है, दिस हैज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजियोस. स्ट्रैटेजियोस का मतलब होता है जनरल से. देखो ये जो वर्ड स्ट्रैटेजी है दैट हैज कम फ्रॉम द सेक्शन ऑफ वॉर. तो बोलते हैं ना वॉर स्ट्रैटेजी, तो ये वहीं से आई. सो ये जो जनरल सिप है इसका अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखो, इसका मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस. सो इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि स्ट्रैटेजी इज समथिंग रिलेटेड विद अ डायरेक्शन. हमें पता है एन ऑर्गेनाइजेशन विल डेफिनेटली हैव देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना विजन होता है, मिशन होता है, अपना एक गोल्स होता है, ये हमें पता है. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दोज गोल, दैट इज अवर स्ट्रैटेजी, द डायरेक्शन. So that means there has to be an independent strategy which will seek the direction towards our goal, or which will give you a proper direction to reach your goal or objective. So the determination. So if I want to define literally, the word strategy is so determination of the basic long-term goals and objective of an enterprise, and the adoption of the course of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals. So ultimately here there are few things that you have to take care. Is first is determination of the basic long term goals. ये जो basic long term goals के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये already set है. It may be your vision, your mission, your organization goals, कहाँ आपको reach करना है, उस goal से फिर हम लोग objectively define करते हैं. Your goal may be to get a 100% share of the adhesive market. This is your goal, your vision, your mission, anything. But this has to be broken down into an objective. आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा इनटू योर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव फॉर एन एंटरप्राइज. एंड देन व्हाट वुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू विल अडॉप्ट. सो दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज एक्चुअली द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी. आपके स्ट्रैटेजी में ये बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है. फर्स्ट आपको डिफाइन करना है आपका गोल क्या है. सेकेंड आपको उस गोल के लिए क्या रास्ता चूज करना है, द वे टू रीच योर गोल. And then the allocation of resources necessary for carrying out this goal. Now you have to allocate resources necessary. Now you have to think about the resource allocation as well. क्योंकि हमने प्लान कर ली, स्ट्रैटेजी बना ली, वैसे तो नहीं होगा. सिर्फ प्लानिंग विल नॉट हेल्प दी हेल्प टू help my me the serve the purpose. It is not going to help me the solve the purpose altogether. Only planning will never help. So you have to ultimately think what I have to plan, the implementation and the controlling. These three things will definitely go together. So that is why we discussed earlier that planning and controlling, this always work together. This planning and controlling, there exists a cyclical relation actually. Planning and controlling. If you are doing planning well, it has to be implemented well. Now, if it is implemented well, you have to control it. Whether the implementation has been carried out at a proper way or not. कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, मैंने प्लान किया मुझे इस गोल के तरफ जाना, सी मेरा गोल है इस तरफ, तो आई वांटेड टू रीच दिस गोल. नाउ वेदर आई एम गोइंग दिस वे और दिस वे, दैट इज कंट्रोलिंग टू चेक द डेविएशन. So strategy is all about you have to determine your basic long term goals. What is your long term goals, where you wanted to carry yourself, where you wanted to go, and then the adoption of the course of action. You need to adopt those course of action, whichever course you are thinking or you're planning of. मे बी आई वॉन्ट टू रीच दिस गोल, मुझे इस गोल तक पहुंचना है. सो वॉट इज माई स्ट्रैटेजी, मैं ऐसे सीधा जाऊंगी, ऐसे घूम के जाऊंगी, मैं इधर से जाऊंगी. सो वट इज माई स्ट्रैटेजी. सो दिस इज माई अडॉप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन स्ट्रैटेजी, because ultimately this is your strategy implementation altogether. Determination of the basic long term goals, this is your planning part. Adoption of the course of action is your implementation part, and the allocation of courses resources necessary for carrying out this goal, this is also your implementation part. तो यहाँ पे प्लानिंग हो गई, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, एंड डेफिनेटली द कंट्रोलिंग पार्ट वुड बी देयर. सो आप देखो स्ट्रैटेजी एक बहुत वाइड अरेना को लेकर काम करता है. आप यहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट कर रहे हो, उस गोल्स में कौन से वे आपको चूज करने हैं वो आपको डिसाइड करना है. सो स्ट्रैटेजी इज ऑल टुगेदर रिलेटेड विद द डायरेक्शन. ये हमेशा याद रखना, स्ट्रैटेजी मीन्स अ डायरेक्शन टुवर्ड्स माय गोल, टुवर्ड्स माय ऑब्जेक्टिव, दैट इज माय direction altogether. So it means you determine your basic long term objective, you determine the what course of action you are going to take, and the resources allocation. Resource allocation we always have to take care of, without, because we all know that resources are scarce.
We don't have abundance of resources and we cannot use it in any manner. It's not possible. So since we have to make a choice, यहाँ लगाना है उधर लगाना है, तो since there's always an opportunity cost involved, so allocation of resources to the strategic alternative, we always have to consider this element in our mind कि भाई कहाँ पे लगाना है, because all the alternatives available, maybe this alternative A or B or C, any alternative is an strategic alternative for me. Different alternatives or different investment alternative will give me or generate me different type of returns. ठीक है ना? Now let's take an example like we have to plan, we have to strategize on few things like how to face the competition. मार्केट में इंटेंस कंपटीशन में अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे मार्केट लीडर्स हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, मैं अकेली तो हूँ. सो मैं उस कंपटीशन को कैसे फेस करूंगी? दिस इज द फॉरमोस्ट क्राइटेरिया. Whether to undertake an expansion or diversification, this is there is also few questions like this कि आप expansion करोगे या diversification करोगे, या आप merger में जाओगे, acquisition में जाओगे. Whether to have a broad based view or to have a focus, आपको broad based view लेकर काम करना है या आपको focus करना है. This is also a sort of strategy you have to prepare on. How to chart a turnaround, आपको अगर organization में एक turnaround लाना है, suppose this is your process currently you are working in, now you wanted to make a shift and entirely you have to change the process, so you have to make a strategy on it, you have to think about it before implementing. How to ensure stability, or should we go for a divestment? If we see in any industry, first what we do is we enter into an introduction stage. First, every industry, this is an industry life cycle. If we enter into any industry, this is our introduction stage. ये हमारा introduction stage होता है. Then we go to the next stage, that is called growth stage. यहाँ पर हम लोग का growth stage होता है. After reaching growth stage हम लोग आ जाते हैं maturity stage में, जहाँ पे हमारी profitability, sales, growth एक maturity level या एक बैलेंस को अचीव कर लेते हैं. इससे ज़्यादा जल्दी बढ़ती नहीं है. ये हाईएस्ट लेवल है एज पर माई रिसोर्सेज एंड माई इंडस्ट्री लेवल. ठीक है. बट आफ्टर रीचिंग टू अ सर्टेन पॉइंट वी नो कि टेक्नोलॉजी चेंज होना है, इंडस्ट्री चेंज होना है, कंपटीशन दिन पे दिन और भी नए आ रहे हैं. तो व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट फेज? अब नेक्स्ट फेज में क्या होगा? इधर यू इम्प्लीमेंट न्यू थिंग, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसको बढ़ाओ, उसको टर्न अराउंड करो, चेंज करो, यू गो फॉर जॉइंट वेंचर, यू गो फॉर मर्जर. अल्टीमेटली यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी हियर ऑल्सो कि भाई इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट. अगर आप कुछ नहीं करते हो देन डेफिनेटली यू विल गो फॉर दी डिक्लाइन फेज. तो हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है. यू एंटर, दिस इज द इंट्रोडक्शन, दिस इज द एक्सपेंशन, दिस इज द मेच्योरिटी, एंड देन you reach the decline phase. So now at this stage only, when we are in a maturity stage, that point of time only we have to consider whether we want to sustain in this phase, whether we want to develop or grow. देखो अगर हम आपके यहाँ पर अगर न्यू इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, देन वी कैन स्टार्ट विद अ न्यू इंट्रोडक्शन, देन अगेन अ न्यू साइकिल विल स्टार्ट. तो ये डिक्लाइन फेज में ना आए, हमें उस वो स्ट्रैटेजी को भी ध्यान में रखना है. सो दिस आर द फ्यू थिंग्स वी हैव टू कंसिडर व्हाइल मेकिंग अ स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी इसी वजह से बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट फेजेस में आप देखो, डिफरेंट प्लेसेस में देखो. वंस यू एंटर इनटू एन मार्केट, आप जब एक मार्केट में एंटर करते हो तो वहाँ पे भी आपको एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही. So an established company may be successful or may have the possibility being profitable. In the past, they would invariably start to face a new threats in the environment. क्या होता है, जितनी ज़्यादा कंपनीज आती है मार्केट में उतनी ज़्यादा हमारे कंपटीशन भी लेकर आती हैं. जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं उतनी ज़्यादा आप देखो नई नई चीज़ें आ रही है मार्केट में, उतनी ज़्यादा कंपटीशन आ रही है. सो उस कंपटीशन में आप कैसे फेस करोगे, किस तरीके से सर्वाइव करोगे? यू हैव टू प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी ऑन इट, राइट? सो this way, these are the few things we have to think or we have to take care of. So we have to prepare a strategy, what would be our line of business, where to go in, what is the direction of the business, what is going to our objective, क्या अप्रोच हम लोग यूज करेंगे. ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रैटेजी में समझते हैं, राइट? देखो एक चीज हमें समझनी चाहिए, दैट operational level of any business is very important. That is your operational effectiveness is quite important. Without reaching the operational efficiency, we can never think of achieving a economies of scale, or we can reach to our optimum level, or we can reach our profitability or the goal or objective of the firm. But apart from the operational level,
वी ऑल्सो हैव टू थिंक एट द अपर लेवल. आप ऑपरेशनल लेवल तो नीचे लेवल पे आ गए, उसके ऊपर जब आप जाओगे स्ट्रैटेजिक लेवल, वहां पे आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू हमेशा रहना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. बिकॉज इफ यू आर इन अ लीडरशिप प्रोफाइल, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द लॉन्ग टर्म ब्रॉडर बेस्ड व्यू. छोटा सा व्यू रखने से नहीं होगा कि ऑपरेशनल काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट वट एवर द लॉन्ग टर्म व्यू. सो वी ऑलवेज हैव टू कंसिडर द स्ट्रैटेजिक व्यू एज वेल. तो वहां पे स्ट्रैटेजी बनानी होती है. लाइक फॉर दिस कंपनीज अंडरटेक, कंपनी अगर देखो एक ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती. लाइक वी टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स. आप जैसे कॉस्ट कटिंग है, री इंजीनियरिंग है, TQM, ये सारे आपके ऑपरेशनल लेवल में आ गए, राइट. Companies can outperform rivals only if it establishes the difference. It can preserve, deliver greater value at reasonable cost. So there we have to prepare a strategy. So आप किस तरीके से ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस में तो आप अपने ऑपरेशनल लेवल पे क्या क्या कर सकते हो वो देख रहे हो, कॉस्ट कटिंग देख रहे हैं, TQM देख रहे हैं, ये सारी चीजें नो डाउट इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अल्टीमेटली आपका इंटायर कॉम्पिटिशन डिपेंड करता है यहीं पे. बस स्ट्रैटेजिक लेवल पे आप देखो आपको क्या सोचना होता है. यहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म ब्रॉड बेस्ड व्यू, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको. इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है दैट हाउ यू आर डिलीवरिंग वैल्यू, वैल्यू क्रिएशन एंड जनरेशन ऑफ वैल्यू फॉर द कस्टमर्स. आपको ये देखना है अपने कि अपने कस्टमर को किस तरीके से हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट मीन्स हाउ वी विल बी सर्विंग अवर कस्टमर इन अ डिफरेंट मैनर. That is our strategic view or strategic entire strategy rest on this activities only. How we can deliver value at a lower cost. अब now what is value generation? हमें पता है value generation. This is the most important thing that we have to understand. Why a customer will buy my product? एक कस्टमर मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? Why a customer will buy? Why customer will buy my product? क्यों खरीदेगा? हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है यूटिलिटी. यूटिलिटी इज द मेन फैक्टर डिफाइनिंग द वैल्यू फॉर अ प्रोडक्ट. आपको इस चीज की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. बट यूटिलिटी तो है हमारे, बट वी हैव टू मेक अ पेमेंट फॉर इट. तो उसके लिए मैं बोलती हूँ उसको कॉस्ट. तो दो चीजें इन्वॉल्व होती है जब एक कोई भी एक कंज्यूमर जब एक परचेस कर रहा है, तो उसमें दो चीजें होती हैं. एक वो अपने बेनिफिट देखता है कि उसको क्या बेनिफिट डिराइव हो रहा है, और दूसरा वो कॉस्ट देखता है. सो कॉस्ट एंड बेनिफिट, टू थिंग्स आर देयर. अभी देखो वैल्यू जनरेशन, वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? वैल्यू इज अ कॉन्सेप्ट दैट वी डिराइव फ्रॉम द बेनिफिट माइनस कॉस्ट. मैं इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में डिफाइन करती हूँ आप लोग की आसान भाषा में समझने के लिए. दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू बेनिफिट माइनस कॉस्ट. द हायर द वैल्यू द मोर सेटिस्फाइड अ कस्टमर इज. सो हायर द बेनिफिट इज डिराइविंग आउट ऑफ इट्स कॉस्ट. अगेन द इकोनॉमिक्स कम्स हियर. आप देखो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था दैट MUX इज इक्वल्स टू PX. Marginal utility from product X should be equals to price of A. At that point of time, a customer is going to buy my product, right? So this way we have to think that how we can generate a value. So this is the most important thing, that how to create value if we give more and more benefit at the lowest cost. So here the segment is where we have to think about the strategy. So this is the segment where we discuss about the strategy is. तो यहाँ पे आपके स्ट्रैटेजी का काम आ जाता है कि आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, अपना स्ट्रैटेजिक मूव क्या लेना है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन किस तरीके से बनानी है. Choosing a unique position is not enough to create a sustainable advantage. It will attract imitation. देखो आपने एक यूनिक पोजीशन बना दी, बट वो यूनिक पोजीशन हमेशा नहीं रह सकती. तो दैट इज नॉट योर स्ट्रैटेजी, क्योंकि इट कैन नॉट हैव अ सस्टेनेबल एडवांटेज ऑल टुगेदर. क्या होता है, आपने एक सस्टेनेंस के लिए हमें क्या, मैंने एक यूनिक पोजीशन बना ली, बट वो आराम से इमिटेट हो सकता है. मैं आज कुछ दे रही हूँ, आप भी वो दे सकते हो कल के डेट में, या कोई और भी कॉपी कर सकता है. तो इमिटेशन इज क्वाइट नेचुरल. So this way, to avoid this, you need to trade off. Trade-offs occurs when activities are incompatible. आपके ट्रेड ऑफ कब आएगा? जब आपकी स्ट्रैटेजी इमिटेट नहीं होगी, आपका ये जो वैल्यू जनरेशन है, ये जो आपका प्रोडक्ट है वो इमिटेट नहीं होगा. यू हैव टू मेक अ ट्रेड ऑफ्स. ट्रेड ऑफ्स occurs when activities are incompatible. They create a need for choice. आपको जरूरत है उसको चॉइस करने की. ट्रेड ऑफ्स occurs for 3 reasons. So now let us consider this trade offs. आपकी स्ट्रैटेजी किसी भी तरीके से दूसरे लोग
चुरा ना सके, कैसे होगा वो पॉसिबल? So we have to consider of trade. First, there are inconsistencies in image and reputation. Inconsistency in image and reputation. I'll explain. Second is the activities themselves are inconsistent. Activities themselves are inconsistent. Third is there are limits on internal coordination and control. If trade-offs are not required, you could do everything and there would be no need for strategy. Limits for internal coordination and control. देखो तीन चीजें बताया है। हमारी जो स्ट्रैटेजी है to avoid this, choosing a unique, as we discussed, that choosing a unique position is not enough. आपने एक यूनिक पोजीशन बना लिया इज नॉट एनफ टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एडवांटेज। हम लोग ये सस्टेनेंस का कॉन्सेप्ट बार बार पढ़े कि सस्टेनेबल, हम जो भी स्ट्रैटेजी बनाए, हम जो भी प्रोफाइल बनाए, वी शुड सस्टेन थ्रू आउट दैट। हमें सस्टेन करने की जरूरत है कि हम उस चीज उस जगह पर रह सके, राइट? सो सस्टेन करना इज इम्पॉर्टेंट। तो क्या है, मैं एक जस्ट एक यूनिक पोजीशन बना ली, so that is not enough for sustainable advantage because it will create attract imitation. क्या होगा, आप नॉर्मल सी बात है, लोग इसको इमिटेट कर सकते हैं। मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, यू कैन इमिटेट इट। टू अवॉइड दिस यू नीड ट्रेड ऑफ्स। ट्रेड ऑफ्स ऑकर्स व्हेन एक्टिविटीज आर इनकॉम्पिटेबल। ट्रेड ऑफ्स कब होता है? ट्रेड ऑफ हमें एक बैलेंस करना होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस बिटवीन व्हाट, कॉस्ट एंड स्ट्रैटेजी, रेपुटेशन एंड स्ट्रैटेजी। ट्रेड ऑफ मतलब होता है एक बैलेंस करना, राइट? दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ करने की जरूरत हमें क्यों होगी? तो अवॉइड दिस, ये जो इमिटेशन है, इमिटेशन ना हो, कोई लोग हमारी कॉपी ना करे, उसके लिए यू नीड ट्रेड ऑफ। दे क्रिएट अ नीड फॉर ट्रेड ऑफ ऑकर्स व्हेन एक्टिविटीज आर इनकम्पैटिबल। आप देख लो कि ट्रेड ऑफ करने की जरूरत कब होती है? जब एक्टिविटीज जो है दे आर इनकम्पैटिबल, ये कंपैटिबल नहीं है हमारे स्ट्रैटेजी के संग, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल के संग। कहीं पर देख लो स्ट्रैटेजी या कुछ भी is not compatible, that is incompatible. So now first there are inconsistencies in image and reputation. The first thing is when there are inconsistencies, हमारी जो image है और हमारे reputation उसके संग कुछ inconsistencies आ रही है, तो we have to prepare a strategy that will make a trade off। हमें उसका एक trade off करना है। So positioning choice will determine हमारी अपनी positioning किस तरीके से होगी, कि activities will perform, how it will configure individual activities। एक्टिविटीज themselves are inconsistent। कभी कभी हमारे जो एक्टिविटीज होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं विद आवर स्ट्रैटेजी, हमारी स्ट्रैटेजी के संग आर नॉट कंसिस्टेंट। limits for internal coordination, there are certain time where we find that there are certain limits for internal coordination या कंट्रोल ठीक से नहीं हो पाए, तो हमें उस वक्त क्या करने की जरूरत है कि हमें एक ट्रेड ऑफ करना है, कि हम जो अपनी स्ट्रैटेजी पे मूव करना चाह रहे हैं उसके संग जो हमारी कॉस्टिंग है, कितना खर्च हम कर सकते हैं, क्या बेनिफिट हम जेनरेट कर सकते हैं, तो वहां पे हमें एक बैलेंस करना होगा। कि हम सोच रहे हैं इतना खर्च करना चाहते हैं, मे बी सपोज 10 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं और मेरे पास रिसोर्सेज है 5 लाख, मुझे मेरा जो कॉस्टिंग आ रहा है, जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आ रहा है, मे बी 10 लाख का बजट आ रहा है, मेरे पास 5 लाख ही है। मैं क्या करूंगी, मैं 5 लाख को तो बढ़ा नहीं सकती, मैं करूंगी मैं अपने एडवर्टीजमेंट्स के जो इंटायर जो मेरे डिजाइनिंग है या एडवर्टीजमेंट्स का जो प्रोसेस है उसको कम करूंगी, जो खर्च है उसको कम करना है, उसको 10 लाख से मैं 5 लाख लेकर आऊंगी। दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। मतलब मेरे जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्स के अंदर अपने बजट को या अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको लेकर आऊंगी। Positioning choices determine not only which activities a company will perform and how it will configure individual activity, but also how activities relate to one another। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट पोजिशनिंग चॉइस आ गई। पोजिशनिंग में आ जाती है ना आपके इमेज, रेपुटेशन। पोजिशनिंग मतलब यू आर पोजिशनिंग इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप किस तरीके से अपने आप को पोजिशन कर रहे हो। पोजिशनिंग में आपके पीआर एक्टिविटीज आ जा रही है, ब्रांडिंग एक्टिविटीज आ जा रही है, how you are actually positioning yourself in the market। So it configure how individual activities will be there, how these activities relate to one another। मुझे ये देखना है ये activities एक दूसरे के संग किस तरीके से related है। जैसे बहुत सारी activities are inconsistent, एक दूसरे के संग consistent नहीं है,
तो मुझे उसको रिलेट करना है, पोजिशनिंग एक्टिविटी में हमें ट्रेड ऑफ करना है, दैट दे शुड रिलेट विद वन अनदर। ऐसा नहीं कि हम लोग बस वो इनकंसिस्टेंट को ही लेके चले, हमको उसको ट्रेड ऑफ करके चलना है। While operational effectiveness is achieving excellence in individual business activity, strategy is about combining activity. अब देखो, जब हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज की बात करें, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की बात करें, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सेलेंस इन इंडिविजुअल प्रोसेसेस। बट अब जब स्ट्रैटेजी की बात करो तो इट मीन्स वी आर कंबाइनिंग ऑल द प्रोसेस। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल लेवल पे एचआर बहुत अच्छा काम कर रहा है, मार्केटिंग बहुत अच्छा काम कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शनल operational unit, ठीक है ना। but once we are discussing about strategy, so we coordinate with all the departments, we coordinate regarding all the activities and we try to get a proper way out of it. हमें एक proper positioning हमें वहाँ पे जाननी है, ठीक है। it involves a full system of activity and how they fit and reinforce each other. fit locks out imitators by creating a chain that is strong as a strongest link. तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ों पे फोकस करना है, अपनी स्ट्रैटेजी कॉपी ना हो इसके लिए हमें पहले ट्रेड ऑफ पे चेक करना है। दूसरी हमें देखना है फिट लॉक्स। दिस इज अनदर टर्म इन स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। दैट मीन्स आपके जितने भी जो मेंबर्स हैं या जो भी कोऑर्डिनेशन लिंक है उस पर ये फिटर लॉक, कि कहीं पर कॉपी करने का कोई लूप ना रहे। फिट लॉक्स आउट इमिटेटर्स। फिट लॉक्स मतलब आप इसको ऐसे फिट कर रहे हो अपने एंटायर चेन ऑफ एक्टिविटीज को, एंटायर वैल्यू चेन को, जहाँ पे कॉपी करना, इमिटेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। फिट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। डिस्क्रीट एक्टिविटीज अफेक्ट ईच अदर। तो आप देखो, फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करने के लिए। इन ऑर्डर टू गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, योर फिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रीट एक्टिविटीज अफेक्ट ईच अदर। इफ इट इज डिस्क्रीट, अलग अलग है ना, देखो, इट ऑल रेस्ट योर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन ऑल रेस्ट ऑन योर इंटीग्रेशन, प्रॉपर इंटीग्रेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आपको याद रहेगा आईसीसी। देखो, पूरा मैनेजमेंट का, एंटायर मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क ये 3P और आईसीसी पर है। 3P तो आप समझ चुके हो, ये आईसीसी हो गया, दैट इज इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। सॉरी। अब कहीं पर भी देखो, अगर कहीं लूप होल्स होता है इस आईसीसी में, इंटीग्रेशन में, कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन में, आपका एंटायर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन विल फेल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी थिंक अबाउट स्ट्रैटेजी प्लानिंग। स्ट्रैटेजी प्लानिंग आपने देखा, देन अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिट लॉक्स। अगर ये सारी चीजें फिट रहेंगी, एक दूसरे के संग वेल कनेक्टेड रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा, फिट, every department is well connected with each other, fitted together, then there is no gap, there is no loopholes. जब loopholes नहीं रहेगा तो imitate होने का possibility कम हो जाता है। बट अगर discrete activities है, discrete मतलब सब अलग अलग है, discrete में वो इधर इस तरीके से। so discrete activities means there is a chances, more chances of being imitated, right? so that is why we have to take care of the ICC. So this was all about the strategy, and then we have to understand. So all factors, the structure, the system, the processes must be strategy specific. तो हमें ये समझना है कि जितने भी factors हैं, आप structure ले लो, that is your organizational structure, the system, the processes, etc. must be strategy specific. सारी चीजें strategy specific होनी चाहिए. That means we are working toward a कॉमन डायरेक्शन। तो अगर हमें सबको पता है कि मेरा स्ट्रक्चर किस लिए बनाना है, अपनी स्ट्रैटेजी के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना दैट अवर स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी। अवर स्ट्रैटेजी इज नॉट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। मेरा स्ट्रैटेजी है, मुझे एक स्कूल डालना है, मुझे एक स्कूल ओपन करना है, दैट इज माई स्ट्रैटेजी एंड दैट इज वाई प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी और अ स्ट्रक्चर फॉर स्कूल। मैं, मेरी स्ट्रैटेजी स्कूल बनाना, तो मैं स्कूल के लिए स्ट्रक्चर तैयार करूंगी। मेरी स्ट्रैटेजी होगी धर्मशाला बनाना, मंदिर बनाना, तो मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार करूंगी। सो मेरा एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन माई स्ट्रैटेजी एंड नॉट माई स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ये याद रखना हमेशा, दैट माई स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी, माई सिस्टम इज बेस्ड ऑन माई स्ट्रैटेजी, माई एंटायर स्टाइल ऑफ वर्किंग, जो मैककेंजी का 7S फ्रेमवर्क है उसमें भी देखना, मैककेंजी ने सबसे पहले बताया है स्ट्रैटेजी, structure, system, style, shared value, staff, skills and so many things are there, shared vision. तो ये सारी चीजें आप देखो एक दूसरे के संग अटैच्ड है। तो everything should be well coordinated to reach towards a common goal or reach towards a common strategy. तो ये strategy का एक मूव होना चाहिए।
ये चीज हमें पता है कि स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, इट्स अ प्री कंसीव नोट दैट वी हैव टू रीच अ लॉन्ग टर्म और कॉमन गोल और एक्टिविटी. शिफ्ट्स आर कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू मेक. क्या होता है हम लोग का, क्योंकि स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग टर्म, हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, तो कभी कभी इफ वी टेक अ शिफ्ट, वहाँ पे कुछ शिफ्ट होता है तो इट कैन बी कॉस्टली फॉर अस. ये हमारे लिए कभी कभी कॉस्टली हो जाता है, शिफ्ट बिकम्स कॉस्टली फॉर अस. ये हमें कभी कभी देखना होता है, ये कॉस्टली पड़ जा रहा है, ठीक है ना. द pitfalls are many. First is the failure to choose itself, that there's a confusion. Second, if you target only operational effectiveness, you'll be good but not better than others. देखो आपके सबसे पहले क्या होता है, चूज इटसेल्फ, देन देयर इज अ कंफ्यूजन. आपको चूज करना जब पड़ता है कि ये करूँ कि ये करूँ, जब आपको ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ होता है स्ट्रैटेजी सिलेक्शन में और इम्प्लीमेंटेशन में. व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, योर स्ट्रैटेजी शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि मुझे यही करना है, ठीक है ना. अगर आपको चूज करना मैं ये करूँ या ये करूँ, दैट मीन्स यू आर नॉट इन अ प्रॉपर मोड ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन. आपको पता ही नहीं आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है. इफ यू आर वेरी क्लियर विद अ प्री कंसीव नोट दैट आई वांटेड टू डू दिस, I wanted to go in for that, that means you are having a clear cut strategy, so you don't have to choose from it. Second, if you are focusing on your operational activities, आप सिर्फ अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज के ऊपर चूज करते हो, तो उस टाइम में यू कैन बी गुड बट यू कैन नॉट बी बेटर देन अदर्स. सो यू शुड हैव अ वेरी common clear cut strategic decisions to take care of. The third and most important problem is the growth trap. दिस इज द ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रोथ दैट कुड डायल्यूट स्ट्रैटेजी. कभी कभी हम लोग ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें ग्रोथ चाहिए, और हम लोग जो अपनी स्ट्रैटेजी मूव पे या स्ट्रैटेजिक मूव पे निकले थे, वही कहीं कहीं डायल्यूट हो जाता है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऊपर या शॉर्ट टर्म ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजी है उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. So basically, to sum up today's session, I'm just giving a brief summarization of whatever I has discussed. So first, what is strategy? A plan, a course of action, a decision rules which are leading to a particular direction. So here we discussed today about strategy. Strategy means क्या है? It's a direction. सबसे पहले strategy का मतलब हो गया direction. So you should have a clear cut direction. Which way to move from? कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है, विच वे यू आर मूविंग, विच वे यू वांटेड टू गो इन. सो दिस इज योर फर्स्ट थिंग. उसके लिए आप एक प्लान, एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हो, यू टेक अ डिसीजन. सो इट इज रिलेटेड विद द कंपनीज एक्टिविटी. वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द वॉर स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स, हम लोग यहाँ पे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं. सो इसमें एक इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, अपना विजन का, अपना मिशन का. तो वो हमें स्टडी करनी है कि हमें कहाँ जाना है, तो अकॉर्डिंगली विल डील विद. It deals with the futures which has uncertainties. Now, strategy, whichever we are working on, it total depends on the future. Now, future is uncertain. ये भी हमें clear पता है कि future is uncertain. But we wanted to be in this place. It is concerned with the resources available today and those that will be necessary in the future for implementing. हम लोग क्या करते हैं जब स्ट्रैटेजी में बनाते हैं और जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में एलोकेट करते हैं अपने रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज जो आज की डेट में हमारे पास, हम उसको ध्यान में रखते हैं, और आगे जो हमें लगने वाला है हम उस पर ध्यान रखते हैं. ये चीज हो गई. इट इज कनेक्टेड टू द स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग. अब ये सिंपल सी बात है, दिस इज विद द टॉप लेवल डिस्कशन, टॉप लेवल decision altogether. Strategic mode is altogether a strategic decision we have to take care of. So it is all about strategic positioning of a firm. It is about making trade-offs between its different activity and creating a fit among this activity. So what strategy is actually concerned with, mainly कहीं पर भी loopholes ना हो, इमिटेट ना हो, तो वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द ट्रेड ऑफ. कहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है, डिफरेंट एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज में कितनी प्रायोरिटी देनी है, कितना इंटीग्रेट करना है, कितना कोऑर्डिनेट करना है, वो सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है. स्ट्रैटेजी इज एट दिस लेवल, द ऑपरेशनल एट दिस लेवल. सो जितनी भी एक्टिविटीज है वो इसी लेवल पे हो रही है. तो स्ट्रैटेजिक मूव की तरफ देखो तो यहाँ से आपको सारी चीजें वेल कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है ना. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी एट वेरियस लेवल्स. So now we'll be discussing in details about the strategy execution.